So what we have learned is gases are compressible. The liquefied petroleum gas which is filled in the cylinders what we use in our houses. Students, in our houses, our mothers will cook the food by using the cylinders. In that cylinder, what will be there? It will be filled with liquefied petroleum gas, LPG gas. It is highly compressible gas. It is compressible. That's why it is used, because due to its compressibility, in high quantity, in large quantity, the cylinder can be filled. Similarly, in our vehicles, we use compressed natural gas, CNG. Why? Because due to its high compressibility, large volume of the gas can be compressed into a small cylinder and can be transferred easily. When we came to know that what is being cooked in our houses, how we came to know? Because in the kitchen, without even entering there, by the smell that reaches our nostrils. How the smell reaches our nostrils? When anything is cooked in our houses, the smell of the cooking will enter into the air, will mix up into the air, and that the particles of the smell of the cooking will interact with the particles of the air, the atoms of the air. Along with the particles of the air, our the air, our the smell which is the smell of cooking will reach in our nostrils, because even we are there in our rooms, we are there in our lawns, we are there in outside, but because the air is everywhere, that smell is reacting with the air, and through the mode of that air, through the medium of that air, the smell is entering in our nostrils. So we came to know that because of the kinetic energy of the gaseous state, all the gases are of high compressible ability. And in gaseous state, the particles move very randomly. It will not move in a unidirectional way. It will not move in a single alignment. It can move left side or right side or up side or down side, whenever, whichever side the force is exerted, it will move in that direction. Whichever direction the force is exerted, it will move in that direction. Due to this random movement, the particles will hit each other, and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of its force exerted by the gas particles per unit area on the wall of container. तो बच्चों, हमने देखा कि थर्ड मैटर ऑफ स्टेट है गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट यानी एवरी गैस, हर वो चीज जो गैसियस स्टेट में होती है, वो उसका ना खुद का शेप होता है, ना खुद का वॉल्यूम होता है. ठीक है, जिस तरह लिक्विड में वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता, लेकिन गैसियस में उसका खुद का शेप भी नहीं होता और उसका खुद का वॉल्यूम भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल, 3 इंजेक्शंस आप लो, खाली इंजेक्शन, उसकी सुराख को अगर आप बंद करके एक इंजेक्शन में आप गैस प्रेस करो, गैस फिल करो, दूसरे इंजेक्शन में आप पानी फिल करो, तीसरे इंजेक्शन में आप चॉक का पाउडर फिल करो, उसके बाद उसके पिस्टन को अगर प्रेस करेंगे तो कौन सा पिस्टन प्रेस होगा? वो पिस्टन प्रेस होगा जिसमें गैस फिल्ड है. वजह क्या है? कि वजह ये है कि गैस के पार्टिकल्स में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. कंप्रेसिबल यानी अपने आप एक दूसरे को दबाना, कंप्रेसिबल करना, कंप्रेस करना, दबाने की कैपेसिटी गैसेस में बहुत ज्यादा होती है. इसी वजह से हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, इसमें क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, वो कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है. उसी तरह हमारे व्हीकल्स में कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी यूज होता है, वो कंप्रेस होके सिलेंडर में फिल किया जाता है. तो गैसेस की एक खासियत ये है कि वो कंप्रेस होके किसी और गैस से बहुत आसानी से मिल जाती है. हमारे घरों में कुकिंग होती है, कुकिंग का हमें स्वेलिंग में फील करते हैं. क्यों फील करते हैं? वजह यह है कि हमारे घरों में जब कुकिंग होती है तो कुकिंग की जो स्मेल के जो पार्टिकल्स है वो हवा के पार्टिकल से जाके मिल जाते हैं, और हवा चूंकि चारों तरफ है, और वही हवा जब हम नाक में लेते हैं, सांस में लेते हैं, तो हम उसकी खुशबू महसूस करते हैं. तो हमें क्या मालूम हुआ? हमें ये मालूम हुआ कि गैस जो है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, और गैस के अंदर के पार्टिकल्स एक चारों तरफ मूवमेंट के लिए बहुत फ्री होते हैं. लिक्विड में भी फ्री होते हैं, लेकिन उसकी फ्रीनेस लिक्विड के मुकाबले में गैसेस में ज्यादा होती है. गैसेस के पार्टिकल्स, गैसेस के एलिमेंट्स, गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रैंडमली मूव हो सकते हैं. गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. इस वजह से गैसेस जो है कोई भी शेप ले सकते हैं, जिसमें वो फिल किया जाए वो अपना वो चीज का वो शेप ले सकते हैं.
In the gaseous state, the particles move randomly at high speed. गैसेस के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो बहुत हाई स्पीड में चारों तरफ घूमते हैं। उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि वो बिल्कुल राइट सीधा सामने की तरफ जाते हैं, भागते हैं, या राइट साइड की तरफ स्पीड से आगे बढ़ते हैं, या लेफ्ट साइड की तरफ स्पीड से आगे बढ़ते हैं। जिस तरफ भी उन्हें फोर्स दिया जाएगा उस तरफ वो स्पीड से आगे बढ़ेंगे। Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. ये रैंडम इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल जो है एक दूसरे से टकराते हैं और अलग होते हैं, और जो कंटेनर में है उस कंटेनर की दीवार से भी टकराकर अलग होते हैं। This pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles. और ये प्रेशर किस वजह से है? उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स की जो अंदरूनी ताकत है उसकी वजह से एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। ये था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बारे में। सॉलिड में हमने देखा कि सॉलिड बॉडी रिजिड होती है, उसके अंदर के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होती मूवमेंट के लिए, इसलिए पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इन्हें दो पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है। लिक्विड में जो है पार्टिकल्स को मूवमेंट होने के लिए बहुत जगह होती है, मूवमेंट होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि लिक्विड को तोड़ नहीं सकते। पानी के पीसेस आप नहीं कर सकते, पानी को किसी और कंटेनर में डाल सकते हैं, लेकिन पानी को जिस तरह आप चॉक को दो पीसेस में कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह पानी को दो पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स के जो बिटवीन का जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन इसी तरह लिक्विड के अंदर का पार्टिकल्स का जो बॉन्ड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड गैस का होता है, क्योंकि गैसेस में भी आप जो है गैसेस के भी आप पीसेस नहीं कर सकते। गैस को किसी एक जगह में आप महफूज बंद रख सकते हैं, किसी एक जगह में आप पैक कर सकते हैं, लेकिन गैस के पीसेस नहीं कर सकते। आप अपने घरों में फुग्गों से खेलते हैं, बलून से खेलते हैं, बलून में गैस फिल होती है। मतलब ये कि जिस चीज में गैस डाला जाए उसे वो चीज का वॉल्यूम गैस ले लेते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा रैंडमली मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं, जब तक कि वो किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होने के लिए उन्हें बाहर से फोर्स ना दिया जाए। तो ये थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस।